ناظرین، شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں۔ مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور قبرستانوں پر اضافی نفری تعینات ہے۔ پیٹرولنگ، چیک پوسٹ اور مشتبہ افراد کی سخت چیکنگ۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئک رسپانس فورس بھی الرٹ۔ پٹاخوں اور آتش بازی کی فروخت کے لیے سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ سندھ بھر میں کل عام تعطیل ہوگی۔ شب بارات پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہیں۔ بابرکت رات پر خصوصی ٹریفک پلان نافذ۔ شہر بھر میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے اقدامات۔ مساجد، امام بارگاہوں، مزارات اور قبرستانوں کے اطراف اضافی نفری تعینات ہے۔ شہریوں کو مساجد اور قبرستانوں کے قریب غلط اور ڈبل پارکنگ سے گریز کی ہدایت۔ ایمرجنسی گاڑیوں کو ہر صورت ترجیحی راستہ دینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، کچھ مزید خبریں شامل کریں۔ پولیس میں کالی بھیڑیں، محافظ لٹیرے بن گئے۔ پولیس اہلکار 3 کروڑ روپے کا سامان لوٹ کر فرار۔ منشیات ڈیلر کے گھر چھاپے کے دوران مبینہ لوٹ مار کی گئی۔ 2 اہلکاروں نے بھانڈا پھوڑا۔ دوران تفتیش اہم انکشافات۔ سب انسپکٹر عمران نے بلوچ کالونی سے منشیات فروش گرفتار کیے۔ سب انسپکٹر اویس نے بینک اکاؤنٹ سے 10 لاکھ منتقل کرائے۔ دونوں اہلکار چھاپے کے بعد غیر حاضر تھے۔ کمپیوٹر آپریٹر سرکاری گواہ بنا۔ انکوائری مکمل، رپورٹ اعلیٰ افسر کو ارسال۔ قانونی اور محکمہ جاتی کارروائی کی درخواست۔ شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی متحرک۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ 5.5 کروڑ کی لاگت سے شہر بھر میں 26 سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ انتخابات میں کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان پینرز اور تصویریں لاہور میں کیوں نہیں لگاتے؟ شعیب مختار کی رپورٹ۔ میئر قائد کی تباہ حال لائبریریوں کو ان کی اصلی حالت میں لانے کا مشن۔ میئر کراچی نے 15 کروڑ روپے کی لاگت سے لائبریریوں میں کام شروع کر دیا۔ ضلع وسطی میں تیموریہ لائبریری کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ مستقبل کے معماروں کو سہولیات فراہم کریں گے۔ 5.5 کروڑ کی لاگت سے شہر میں 26 سڑکیں بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ کراچی انتظامیہ نے ہاشو سینٹر میں فائر سیفٹی نظام نہ ہونے کے باعث 200 سے زائد دکانیں سیل کر کے ممکنہ بڑے سانحے کو ٹال دیا۔ یہاں 30 سے زائد خطرناک ورک شاپس بھی قائم تھیں جن میں گیس چارجنگ اور ویلڈنگ کا کام ہوتا تھا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ کراچی ایک اور بڑے سانحے سے بچ گیا۔ فائر سیفٹی نظام نہ ہونے پر صدر میں ہاشو مارکیٹ کی 200 دکانیں سیل کر دی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق 30 سے زائد دکانیں خطرناک ورک شاپس کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ کراچی الیکٹرانک ڈیلرز کے فائننس سیکریٹری سہیل ملک نے بتایا کہ ورک شاپس میں گیس چارجنگ اور ویلڈنگ جیسے خطرناک کام انجام دیے جا رہے تھے، جس کسی ناخوشگوار حادثے کا سبب بن سکتے تھے۔ یہاں پر کچھ ورک شاپس بھی ہیں، کچھ لوگوں نے ڈینٹنگ کی دکانیں بھی کھولی ہوئی ہیں اور کچھ جو ہے یہاں پر گیس وغیرہ کی چارجنگ کے بھی کام ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 4 سال پہلے ایک یہاں سانحہ ہوا تھا جب بلاسٹ ہوا تھا اور اس میں 3 کیجولیٹیز ہوئی تھی۔ سیکریٹری فائننس سہیل ملک نے کہا کہ ورک شاپس کو مارکیٹوں سے دور منتقل کرنا ہوگا کیونکہ یہ آگ کے پھیلاؤ کا بڑا سبب بنتی ہیں۔ بالکل، جو اس وقت لاء ہے، جو قانون ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شاپنگ سینٹر کے اندر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، ورک شاپ یا کوئی اس قسم کی چیز جس کا آگ کا پھیلاؤ ہو۔ تو یہ ایک انتہائی ڈینجرس چیز ہے اور اس کو یہاں سے شفٹ کرنا پڑے گا۔ انتظامیہ اس سلسلے میں ہم سے کوارڈینیٹ کر رہی ہے اور ہم بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کیونکہ یہ پروجیکٹ مرتضی کنسٹرکشن کمپنی کا پروجیکٹ ہے اور انہوں نے جو دکانیں یہاں دی ہوئی ہیں اس میں سے ابھی یہاں 200 میں سے 100 دکانیں جو ہیں ابھی لیز بھی نہیں ہیں۔ سہیل ملک کے مطابق انتظامیہ نے دکانداروں کو متعدد بار وارننگ دی مگر اس کے باوجود SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ کیمرامین قدرت اللہ جمالی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ شہر قائد میں مسائل کے انبار لگ گئے۔ سڑکیں اور سیوریج سسٹم تباہ۔ صدر کے اردو بازار میں سڑکوں پر کیچڑ اور پانی جمع۔ شہری کہتے ہیں کہ گٹر ابلنے کے باعث پانی سڑک پر آ جاتا ہے۔ کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کراتے ہیں پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ شہر قائد میں سیوریج کا تباہ حال نظام، کیچڑ پانی سے راہگیر علاقہ مکین اذیت سے دو چار۔ صدر کے اردو بازار میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ اور پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ دکانداروں اور رہائشیوں کے مطابق عرصے سے سیوریج کا مسئلہ ہے۔ بارشوں میں تو صورتحال اور بھی ابتر ہو جاتی ہے۔ کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے۔ کاروبار تو یہاں تو سب کو خراب ہے یہاں پر بالکل۔ ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے یہ پانی بھرتا ہے نا، اتنا پانی بھر جاتا ہے یہاں پر۔
मेरी ये गाड़ी साहब ने ये गाड़ी पूरी आधी डूब गई थी ये, अभी भी ये भरा हुआ है सारा, मतलब बुरा हाल हुआ कराची का, किसी जगह भी चले जाएं आप। 10 दिन से ये काम चल रहा है, सफाई होती फिर पानी आ जाता है, ये सीवरेज लाइन बन रही है, फिर खुदाई चालू है, इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द काम हो जाए। शहरियों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत सफाई कराते हैं, इंतज़ामिया को चाहिए कि मुस्तकिल बुनियादों पर मसला हल करे। कैमरामैन काशिफ के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। तारिक रोड की मरकजी मार्केट पर सड़क की तामीर एक बार फिर सवालिया निशान बन गई। पेवर ब्लॉक्स और बजरी तो पहुंचा दी गई, मगर काम शुरू न होने से दुकानदार शदीद मुश्किलात का शिकार है। कारोबार मुतासर है, रास्ते बंद और सरकारी मटीरियल चोरी होने लगा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। ये है कराची की मारूफ तारिक रोड कमर्शियल मार्केट, जहां तरक्की के नाम पर सिर्फ पेवर ब्लॉक्स और बजरी सड़क किनारे रख दी गई, मगर तामीराती काम एक हफ्ते से शुरू ना हो सका। बिखरा हुआ मटेरियल, उखड़ी हुई सड़क और गर्दो गुबार ने तारिक रोड को मुश्किलात में डाल दिया है। इन हालात में गाहक मार्केट आने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि रात के वक्त एक एक करके पेवर ब्लॉक्स गायब हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ताख़ीर के बाइस ना सिर्फ कारोबार मुतासर हो रहा है, बल्कि कीमती सरकारी मटेरियल चोरी होना भी मामूल बनता जा रहा है। तो एक हफ्ता हो गया ये तकरीबन ये सामान डाल के चले गए, ईंटें और ये रेती बजरी सब डाल के चले गए, लेकिन एक हफ्ते से अभी बिल्कुल ये नज़र नहीं आ रहे। हम रोज़ फ़ोन करते हैं भी कब होगा काम, कब होगा, तो वो कह रहे हैं बस अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। तो इस तरह ये रोज़ हमें लारे लपे में रखा हुआ है। तो सामान देखिए बिखरा पड़ा है, ईंटें लोग उठाकर जाना शुरू हो गए हैं, रास्ता बंद हुआ हुआ है मार्केट का। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए, ताकि कारोबारी सरगर्मियां बहाल हों और सरकारी मटेरियल की चोरी का सिलसिला रोका जा सके। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। KMC के फेयर मार्केट में अपनी तबाही की दास्तान और मुतल्लिका अफसरान की गफलत बयान करने लगी। मार्केट में फैले सीवरेज के पानी और नाक़िस निज़ाम के बायस बेशतर दुकानों पर ताले लग चुके हैं। मुतासरा दुकानदार कहते हैं हालात रोज़गार के लिए संगीन ख़तरा बनते जा रहे हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। फेयर मार्केट के अंदर और इतराफ़ में फैला सीवरेज का पानी दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर रहा है। मार्केट की बदहाली ने कारोबारी माहौल को जवाल की जानिब धकेल दिया है। नाक़िस निकासी आप के बायस मुतादिद दुकानें बंद हो चुकी हैं और कई दुकानदार कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। फेयर मार्केट तकरीबन 400 दुकानों पर मुश्तमिल है और प्रिंटिंग के काम का अहम मरकज है, मगर बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से ये तिजारती मरकज जवाल का शिकार हो चुका है। दुकानदारों का कहना है कि वो KMC को बाकायदगी से किराया अदा करते हैं, जिसमें सीवरेज के चार्जेस भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद सफाई और निकासी आप का इंतजाम खुद करना पड़ता है। ये जो गटर का पानी है, ये पानी हमारी मार्केट का पानी नहीं है, ये ऊपर जो KMC के जो एम्प्लॉय रहते हैं ये उनका सीवरेज का पानी है। सही है, उनके पाइप टूटे हुए हैं, वो लोग 1 रुपया लगाते नहीं है और ये सारा हमारे को भुगतना पड़ता है। सारी दुकानें बंद होती जा रही हैं। पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो मलबे से भरा पड़ा है और गटर का पानी उबल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जिसपे ये है कि सारे मार्केट वाले जितने भी हमारे हैं, यहाँ से नमाजी भी गुजरते हैं, सब गुजरते हैं, और सामने मार्केट के बाहर मस्जिद है और हम लोगों का तो यहाँ जीना हराम हो गया है। क्या ट्राली ले जा नहीं सकते यहाँ से पानी की वजह से, इससे पानी को झटका भी लगता है। बंदे हमारे बल्कि दर्द में फंस गए, मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे। अब दुकानें हमारी बंद रहेगी, काम कैसे करेंगे हम आगे? मजदूरी करना मुश्किल हो गई हमारे को यहाँ पे। 3 महीने हो गए हमारे, समझ लो, काम को मुतासिर होते हुए। आगे रमजान का महीना आ रहा है, ठीक है। हम ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम काम करेंगे और किस तरीके से अपना घर का अखराजात पूरे करेंगे। तासरा दुकानदारों के मुताबिक मार्केट में मौजूदा गंदा पानी KMC के मुलाजमीन की रिहायशी इमारत से आ रहा है, लेकिन मुतादिद शिकायत के बावजूद मुतल्लिका अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि KMC फौरी तौर पर निकासी आप का मौसम निज़ाम बहाल करे, ताकि मार्केट में कारोबार दोबारा जारी हो सके और शहरी महफूज माहौल में खरीदो फरोख्त कर सके। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिटी 21 की निशानदही काम कर गई। नॉर्थ कराची में एक बरस से दरपेश सीवरेज के संगीन मसले पर महकमा पानी और सफाई हरकत में आ गया। सिटी 21 पर खबर नशर होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर सीवरेज लाइन की मरम्मत का काम शुरू हो गया। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। सिटी 21 की काविश रंग ले आई। नॉर्थ कराची सेक्टर 11C1 में 1 साल से नाकारा सीवरेज निज़ाम हुक्काम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। सिटी 21 की जानिब से मसला उजागर किए जाने के बाद महकमा पानी व सफाई ने फौरी एक्शन ले लिया। बाबे आरिफ के मुकाम पर बैठ जाने वाली 33 इंच कतर की सीवरेज लाइन की मुरम्मत का काम शुरू। सब इंजीनियर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन असगर अली अंसारी के मुताबिक बाबे आरिफ पर 33 इंच कतर की सीवरेज लाइन
बैठ गई थी, जिसकी वजह से पूरा निजाम मुतासिर हो रहा था। मुरम्मती काम रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये 33 इंच की लाइन है और इसका डायमीटर जो है 33 इंच है और ये तमाम सेक्टर 7C से लेके इकरा यूनिवर्सिटी 7D के चारों सेक्टर 10, 11C, 1, 2, 3 इन सब का लोड लेके ये नागन चौरंगी एजाज बिरयानी पे आती थी और वहाँ से ये रोड क्रॉस करके ये बाबे आरिफ की तरफ आती थी और यहाँ सिंक डाउन हुई है हमारी लाइन और इसको इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर देंगे पूरा काम ये। और जितना भी यहाँ डिस्पोजल का इशू आया था UC1 सर सैयद का, वो इंशाल्लाह आज हल हो जाएगा। काम के आगाज पर इलाका मकीनों ने सिटी 21 से इजहार तशक्कुर किया। कहा, हमारा 1 साल पुराना मसला उजागर किया गया। अब मुतालबा है कि सीवरेज के बायस जो सड़कें तबाह हो चुकी हैं उनकी फौरी मुरम्मत की जाए। भाई ये आप लोगों ने जो है ना, ये सिटी 21 वालों ने न्यूज़ चलाया, जो एक्शन हुआ उसके तहत अब ये है कि सीवरेज का निज़ाम तो चलो ठीक है हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से ये रोड की बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। गुजारिश मेरी इदारों से यही होगी कि इस रोड को जो है ना बनाया जाए। कल माशाल्लाह सिटी 21 वाले आए थे और उनको आके ये कवरेज ले रहे थे और उन्होंने सब लोगों से पूछा भी, मैंने भी उन्हें बताया कि भाई ये लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस कंप्लेन करने के बाद अब उम्मीद है कि वहाँ के जो रिलेटेड अफसरान हैं उन्होंने बड़ी तसल्ली दी है कि भाई हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। महकमा पानी व सफाई के हुक्काम का कहना है कि लाइन की तब्दीली से न सिर्फ सेक्टर 11C बल्कि सेक्टर 7C, D, सेक्टर 10 और एतराफ के इलाकों में भी सीवरेज मसाइल में नुमाया बेहतरी आएगी। कैमरामैन इमरान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। ताख़ीर से ही सही, लेकिन अवामी मुफाद में पाकिस्तान टेलीकॉम एक्स प्रोवाइडर एसोसिएशन ने हवा में मुअल्लक केबल्स को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल करने का काम शुरू कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। तारिक रोड के मसरूफ़ और तिजारती मराकज़ को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम एक्स प्रोवाइडर एसोसिएशन ने एक अहम इकदाम उठाया है। इलाके में कई बरसों से बिजली और टेली कम्युनिकेशन की मौलिक केबल्स शहरियों के लिए ख़तरा बन रही थीं, लेकिन अब इन केबल्स को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल करने का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इब्तदाई मरहले में तारिक रोड और मुल्हिका इलाकों में 8000 रनिंग फुट केबल्स को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, जिससे शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ तिजारती सरगर्मियों के लिए महफूज माहौल भी मैसर आएगा। चेयरमैन UC2 चनेसर टाउन इरफानुल्लाह का कहना है कि ये इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत ज़रूरी था। जहां काम मुकम्मल हो जाए वहां सड़कों और गलियों की फौरी अस्तरकारी भी होनी चाहिए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये डेवलपमेंट का काम है, हर डेवलपमेंट का काम पुरानी खराबी को दूर कर रहा होता है। तो ये जो चारों का झमघट पूरा आप लोगों को नजर आता है, ये तारों का झमघट अगर खत्म हो जाएगा और उसकी जगह सिर्फ बिजली का तार अलग से जा रहा होगा और बाकी नीचे से ग्राउंड से तार जा रहे होंगे, तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जो बदनुमा दाग है तारिक रोड के एरिया में, ये भी दूर हो जाएगा। शहरी कहते हैं कि तारिक रोड जैसे मसरूफ इलाके में केबल्स का ज़ेर ज़मीन होना ज़रूरी था। इससे खूबसूरती बढ़ेगी और मसाइल कम होंगे। शहरियों का कहना है कि अगर मंसूबा शफाफियत और मयार के साथ मुकम्मल किया जाए तो कराची के दीगर इलाकों में भी ऐसे इक़दामात की राह हमवार हो सकती है। कैमरामैन इमरान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज दिन भर तेज़ी रही। हंड्रेड इंडेक्स 1842 पॉइंट्स इजाफे से 1,86,900 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में खरीदारी का रुझान, इंडेक्स 1842 से ज़ायद पॉइंट्स बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार एक बार फिर मुतारिक हो गए। रवां हफ्ते दूसरे ट्रेडिंग सेशन में भी तेज़ी का रुझान बरकरार। कारोबार का मस्बत इख्तिताम हुआ, जहां 100 इंडेक्स 1842 पॉइंट्स इजाफे से 1,86,900 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,87,518 रही। माहिरीन के मुताबिक मज़बूत मुआशी अशारियों के बायस सरमायाकार मार्केट में सरगर्म नजर आए। पिछले 4 दिनों में तकरीबन 5% से ज़ायद कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में नीचे आए। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसका पाकिस्तान पर नेगेटिव इम्पैक्ट आपने देखा कि 13 रुपये डीजल की प्राइस बढ़ी है, जिसका नतीजा आज आपने देखा कि इन्फ्लेशन के नंबर हैं उसमें स्लाइटली अपसाइड के ऊपर हम उसको आता हुआ देख रहे हैं। ओवरऑल जो पोजीशन है वो बेहतर है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर अब हम सेक्टर में देखें तो स्टील अभी तक जो है ना वो सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन है, कमर्शियल बैंक्स है और उसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर है। तो ओवरऑल पोजीशन बेहतर है, लेकिन अब क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू होने जा रहा है तो यहाँ पर मार्केट को हम काफ़ी वॉलेटाइल देखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,85,057 पर बंद हुआ था। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में जनवरी 2026 के दौरान नुमाया कमी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक तिजारती खसारा माहाना बुनियादों पर
28.5% कम होकर 2 अरब 72 करोड़ डॉलर रह गया। ताहम रवा माली साल के मजमूई अदाद-ओ-शुमार अब भी मईशत के लिए चैलेंज बने हुए हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में कमी की खबर सामने आ गई है। इदारा शुमारियात ने जनवरी 2026 के तिजारती अदादो शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक मुल्क के तिजारती खसारे में माहाना बुनियादों पर 28.5%, जबकि सालाना बुनियादों पर 6.60% कमी रिकॉर्ड की गई है। अदादो शुमार के मुताबिक जनवरी 2026 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 2 अरब 72 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा, जबकि एक साल कबल जनवरी 2025 में यह खसारा 2 अरब 91 करोड़ डॉलर था और दिसंबर 2025 में तिजारती खसारा 3 अरब 81 करोड़ 90 लाख डॉलर था। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में बरामदात में नुमाया इजाफा देखा गया। माहाना बुनियादों पर बरामदात में 35%, जबकि सालाना बुनियादों पर 3.70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जनवरी 2026 में पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 3 अरब 6 करोड़ 10 लाख डॉलर तक पहुंच गई, जबकि जनवरी 2025 में बरामदात 2 अरब 95 करोड़ डॉलर और दिसंबर 2025 में 2 अरब 26 करोड़ डॉलर थी। दूसरी जानिब दरामदी बिल में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। जनवरी 2026 में दरामदात माहाना बुनियादों पर 4.90% और सालाना बुनियादों पर 1.40% कम हुई। जनवरी 2026 में पाकिस्तान का दरामदी बिल 5 अरब 78 करोड़ 60 लाख अमरीकी डॉलर रहा, जबकि दिसंबर 2025 में दरामदी बिल 6.8 अरब डॉलर और जनवरी 2025 में 5.86 अरब डॉलर था। ताहम मजमूई तौर पर रवां माली साल के पहले 7 माह के अदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक तस्वीर पेश करते हैं। रवां माली साल के 7 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 28% इजाफे के साथ 22.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में तिजारती खसारा 17.18 अरब डॉलर था। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के 7 माह में बरामदात में 7% कमी से 18.19 अरब डॉलर रही, जबकि इसी मुद्दत में दरामदात 9.4% इजाफे के साथ 40.23 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अशरफ खान, सिटी 21। कोस्ट लाइन के मुहाफिज पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड्स मशकों का दूसरा रोज़ खुले समंदर में फंसी माहीगीरों की कश्ती को रेस्क्यू कर लिया गया। इंसदाद मनशियात और स्मगलिंग ऑपरेशन का भी मुजाहरा हुआ। 7 माहीगीरों को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकवर करके PNS कश्मीर पर कामयाबी से मुंतकिल किया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। मुल्क की 840 नॉटिकल मील तवील समंदरी हुदूद में मुहाफिज पाकिस्तान नेवी की मशकें जारी। पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड्स मशकों के सी फेज के दूसरे रोज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मुजाहरा हुआ। मशकों में डिफेंडर एयरक्राफ्ट, फास्ट रेस्क्यू बोट और एलिवेट हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। कोमोडोर सैयद नुमान अली, डिप्टी DG मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान नेवी की सी गार्ड्स मशकों के दौरान JMICC को रेस्क्यू कॉल पर समंदर में फंसी कश्ती का पता चला। रेस्क्यू करने के लिए पहले डिफेंडर एयरक्राफ्ट ने इंतहाई नीची परवाज की और समंदर में मौजूद PNS कश्मीर को तस्दीकी इत्तला दी। इसमें एक सबसे अहम काम जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू है, जिसमें हम कीमती जानें बचाते हैं। तो जिस तरह आज के आपने इवेंट में देखा है कि हमने सिमुलेट किया कि एक शिप से एक लाइफ राफ्ट पे सर्वाइवर्स हमें मिले, तो आपने देखा कि किस तरह किस सीक्वेंस से PMSA के डिफेंडर एयरक्राफ्ट वो इस एरिया में आया, उसने सर्च किया और उसने सर्वाइवर्स को लोकेट किया। एलिवेट हेलीकॉप्टर ने वेट विंचिंग करके माहीगीरों को महफूज तरीके से रेस्क्यू किया। सी गार्ड्स मशकों के दौरान इंसाद मंशियात व स्मगलिंग ऑपरेशन और गवादर की टास्क फोर्स 86 की अमली सलाहियतों की जांच की गई। सी गार्ड्स मशकों में मैरीटाइम सेक्टर के कई इदारों ने हिस्सा लिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी समंदरी हुदूद की हिफाजत के साथ 5 साल में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 2000 इंसानी जानों को बचा चुकी है। सी गार्ड मशक 9 फरवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन आगर रफीक के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक न्यू वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के ज़रिए एहतमाम 15वीं इंटरनेशनल वुमेन समिट मुनक़्क़िद की गई। पाकिस्तान में तैनात स्वीडन और जर्मनी के सफ़ीरों समेत कई ममालिक के काउंसिल जनरल्स ने खुसूसी शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन 15वीं इंटरनेशनल वुमेन लीडर्स समिट 2026 का इनेकाद। बैनुल अक़वामी समिट में ख़वातीन की क़यादत और पायदार तरक्की पर आला सतह का मुकालमा का एहतमाम किया गया। मुंतज़मीन यास्मीन हैदर ने कहा कि ख़वातीन क़यादत पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की कुंजी है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना कौमी ज़रूरत है। जर्मनी की सफ़ीर सनफ़ी बराबरी पर खुसूसी खिताब किया। कहा न्यू वर्ल्ड कॉन्सेप्ट ख़वातीन की
پیشہ ورانہ ترقی کے لیے بہترین ہے۔ In this conference once again. I participated 8 or 9 years ago, and I am very inspired by seeing all these women, but also all these men who are really working for women and participation and women empowerment in their organization. سویڈن کی سفیر الیگزینڈرا براج نے خطاب میں کہا کہ مالی شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ No, I think conferences like these are very important. I think they serve as a platform to promote women's empowerment and exchange experiences. But I also think it's important to include men in this conversation, because in the end, gender equality is a multi-stakeholder effort that requires the involvement and engagement of men, of policy makers, governments, schools, offices. So I really am impressed by the diversity in the audience that we see here today, and I think it's great. کونسل جنرل ملیشیا ہرمن نے کہا کہ وومن لیڈرز سمٹ میں پالیسی سازی، کاروبار اور سماجی ترقی پر گفتگو کرنا خوشائند ہے۔ Thank you to the organizer for inviting having me here to the event. This to Miss Yasmin Haider, who have been, I think, working very hard to make sure that the 15th edition of the conference. سمٹ میں اطالوی کونسل جنرل فیبریزیو، جاپان کے کونسل جنرل ہاتوری ماسورو، قطر کے وائس کونسل جنرل اور جرمن ثقافتی مرکز کے ڈائریکٹر و دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد حسنین کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اور اہم قدم، ناؤ PDP ہنر پروگرام کی گریجویشن تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں 380 افراد کو 1 سالہ ڈپلومہ سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ۔ نیٹ ورک آف آرگنائزیشن ورکنگ فار پیپل ڈسیبلٹیز پاکستان کی جانب سے تقریب کا اہتمام۔ ناؤ PDPS کے زیر اہتمام ہنر پروگرام کی گریجویشن تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں 2024 اور 2025 کے دوران تربیت حاصل کرنے والے 380 خصوصی افراد کو 1 سالہ ڈپلومہ سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ طلبہ کو مختلف شعبہ جات میں پیشہ ورانہ اور عملی تربیت فراہم کی گئی، جس کا مقصد خصوصی افراد کو خود کفیل اور روزگار کے قابل بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ حکومت سندھ ایسے پروگرامز کی مکمل حمایت کرتی رہے گی تاکہ خصوصی افراد اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 21۔